Now we will start with displacement reaction. As we have learned from the previous experiment about combustion combination reaction, now we will learn displacement. For this displacement reaction, we will need few things: iron nails, right? Few test tube holder, distilled water, which I have already taken in a beaker, copper sulfate, and a spatula. As I told you earlier, that copper sulfate is a poisonous substance that you should not touch with your bare hand, right? And you should not ever inhale it. Poisonous means if you take it inside your body, it can cause harm. And when we take it with our bare hand, we tend to inhale it from the hand, right? Because we touch our face with our hand. Now, I'll take little amount of copper sulfate in this test tube. What is displacement reaction, if anyone can tell me? We have already studied in the previous chapter. Yes, element which is more reactive will always displace less reactive element in a compound. So in this case, we have copper sulfate. Copper sulfate is, formula for copper sulfate is CuSO4. And the formula for iron is Fe. Now, if you have remember the reactivity series, copper Cu lies below iron. Yes. So it means that iron is more reactive than copper. So when iron comes in contact with copper sulfate, iron will tend to remove the copper present in copper sulfate, and it will displace the copper and form iron sulfate, and copper will be left behind. जो आयरन है वो कॉपर को कॉपर सल्फेट में से हटा देगा और आयरन सल्फेट बना देगा और कॉपर अकेले आ जाएगा. तो इस रिएक्शन में जब हम करेंगे तो क्या होगा कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, राइट? तो और आयरन सल्फेट का जो कलर होता है वो लाइट ग्रीनिश होता है, ठीक है? तो होगा क्या कि एज वी पुट कॉपर सल्फेट एंड आयरन, वी विल सी दैट सम सॉर्ट ऑफ रिएक्शन इज हैपनिंग, और कॉपर का एक डिपॉजिट बनेगा आयरन पे, और कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन था वो ग्रीनिश हो जाएगा. ग्रीनिश का मतलब हम ये मानेंगे कि वो आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है? हो चुका है या थोड़ा बहुत हो रहा है, ठीक है? तो लेट्स टेक फ्यू, ज़्यादा नहीं लेंगे कॉपर सल्फेट, थोड़ा कम लेंगे. So now we have dissolved copper sulfate in water. As we can see, it is light blue color. Blue nahi to light blue color, right? Now we will put a nail, iron nail, into the copper sulfate solution. As you can see, it is of white color. जैसा iron का color होता है वैसा ही है, right? पता ही होता है color कैसा होता है. Now let's put this into this. And we will wait. While we are waiting, I have already taken the liberty of doing it earlier so that I can show you the result, right? So this is a copper sulfate solution without anything in it, right? As you can see, the color is remaining blue. As I am showing this, the reaction is happening here also, right? But what will be the reaction? Let it sit for a while we assess our previous experiments. I have done twice because एक बार मैंने थोड़ा कॉपर सल्फेट थोड़ा ज़्यादा रखा था, बट इससे कोई इशू नहीं है. मैंने 2 नेल रखे हैं इसमें, एंड यू कैन सी द कलर हैज़ चेंज्ड फ्रॉम दिस to this. Can you see the difference in the color? Yes. Right? And in one I have put only one iron, and I have put a little amount of copper sulfate here. Now let's take it out and see what has changed in the iron nail. This is the solution after the experiment,
and this is the iron nail. As you can see, a copper has deposited here, जिसकी वजह से let me remove it. Okay. And as you can see कि एक प्योर कॉपर है इसके ऊपर, राइट? तो आयरन यहाँ पे एक जो लेयर था आयरन का, वो आयरन डिस्प्लेस हो गया, कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बना दिया, और वो जो कॉपर जो बचा था वो कॉपर इस जगह पर आकर एक कॉपर डिपॉजिट हो गया, जिसकी वजह से एग्जैक्टली कॉपर का कलर हो रहा है. यू कैन पुट इट इन योर हैंड. Now, this is exactly what happening here, है ना? This is exactly what is happening. You can see the small amount of, let me just wipe it off. यहाँ पर भी वही हो रहा है, exactly वही हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है? थोड़ी देर अगर मैं लीव करता हूँ इसको तो ये भी वैसा ही बन जाएगा. इनफैक्ट अभी भी हो चुका है ये, ठीक है? So with this we conclude that when iron comes in contact with copper sulfate, iron will displace the copper present in copper sulfate and it will form iron sulfate and copper will be left alone, right? जो कि इसके साथ हुआ है. ये है हमारा normal nail. You can see the clear difference here, right? Clear difference. ठीक. Any question if you have regarding this experiment? You can see if you would like. देख सकते हो. कोई सवाल है किसी के पास? Question if anyone has, you can ask. पूछो. क्या इस पे जो लेयर चढ़ा है, क्या वो लेयर रिमूव किया जा सकता है? तो ये यहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है. यहाँ पर क्या हुआ है कि एक एटम आयरन का यहाँ से हटा, कॉपर सल्फेट में का कॉपर को हटाया, बट वो कॉपर यहाँ पर आकर डिपॉजिट हुआ है. तो जो डिपॉजिशन है वो बहुत ही प्रिसाइज और बहुत परफेक्टली हुआ है. इसीलिए हम इसको नॉर्मली ऐसे रब करके तो हटा नहीं सकते, बट येस इट कैन बी रिमूव्ड इफ़ यू यूज़ सैंड पेपर और एनीथिंग लाइक दैट. ये रिमूव हो सकता है क्योंकि कॉपर का डिपॉजिट है, आयरन के साथ कंबाइन नहीं किया है. ठीक है. ठीक वैसे ही जैसे एक आप लोगों ने सुना होगा सोने का पानी चढ़ता है. तो सोने का पानी क्या होता है, एक्चुअली वो डिपॉजिट होता है एक पतला सा थिन लेयर. हालांकि वो प्रोसेस अलग होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं उसे, लेकिन वो भी कुछ ऐसा ही रहता है कि एक पतला सा फिल्म हम एक पतला सा लेयर चढ़ा देते हैं. तो वो नॉर्मली ऐसे रब करने से तो नहीं हटेगा, बट यू नो कि अगर मैं उसे सैंड पेपर से रब करूँ तो वो एक लेयर हट जाता है. वैसे ही इसके साथ भी है. ठीक. एनी अदर? यस सर, ऐसा सिर्फ केमिकल मतलब ये जो सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, ऐसे सिर्फ आयरन के साथ मतलब ये दोनों के साथ होता है या फिर दूसरा सोल्यूशन में भी हम इसे रख सकते हैं? तो अब जब हम सॉल्यूशन देख रहे हैं और किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो हमें ये देखना होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में कौन कहाँ है. अगर मैं आयरन सल्फेट में कॉपर डालता कुछ नहीं होता है ना, क्योंकि लेस रिएक्टिव है कॉपर. तो इसी तरीके से अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो आप देखेंगे किस कंपाउंड का सॉल्यूशन है और जिस चीज़ को आप डाल रहे हैं, जिस एलिमेंट को डाल रहे हैं, वो कौन सा एलिमेंट है और वेयर इट कम्स इन रिएक्टिविटी सीरीज़, है ना. आई थिंक वहाँ पे लिखा भी है सोडियम, बेरियम. रिएक्टिविटी सीरीज़ सबसे साइड में जो है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, इस तरह से लिखा हुआ है. तो उसमें आपको देखना है कि कौन सा ऊपर है और कौन सा नीचे है. जो ऊपर होगा वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा, नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता. सर, कॉपर सल्फेट में जिंक डालेंगे तो क्या होगा? तो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर और जिंक कहाँ आता है, कौन नीचे आता है कौन ऊपर आता है? जिंक शायद नीचे. वहाँ देख लो, यू कैन रेफर इट. जिंक कहाँ है? नीचे है. कॉपर के नीचे है जिंक. कुछ नहीं होगा क्योंकि जिंक अगर डिस्प्लेस करना चाहता है कॉपर को, तो जिंक को मोर रिएक्टिव होना है और वो लिस रिएक्टिव है. तो कैसे उसे करे? तुम ही सोचो ना. सपोज तुम्हारे पास एक दोस्त होते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल संस्कृति एंड अदिति ये नहीं आई है, तो संस्कृति एंड अदिति आर सिटिंग टुगेदर क्योंकि वो लोग अच्छे दोस्त हैं, ठीक है. लेकिन अब राजलक्ष्मी अगर आ जाती है क्लास में तो क्या होगा? संस्कृति बोलेगी अदिति तुम जाओ
मैं राजलक्ष्मी के साथ बैठूंगी क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी दोस्त है, राइट? क्यों? क्योंकि शी इज़ मोर रिएक्टिव देन हर। कह सकते हैं? तो उसी तरह से तुम लोगों में भी होता है कि हम दोस्तों के साथ तो रहते हैं, लेकिन जब हमसे उससे जो जिस दोस्त के साथ रहे उससे अच्छा दोस्त अगर आ जाता है तो उसके साइड कर देते हैं, उसके साथ रहते हैं। सिमिलरली अगर कॉपर सल्फेट है, ठीक है, लेकिन आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है ना, तो सल्फेट जो है वो आयरन के साथ बाइंड कर जाएगा, कॉपर को अकेले छोड़ देगा। समझे? इसी तरीके से। कोई सवाल और? तो इसी के साथ कंक्लूड करें, या कुछ और सवाल पूछना है, या कुछ भी है तो डाउट वगैरह तो पूछ सकते हो। क्या ये रिवर्सिबल है? क्या रिवर्सिबल मीन्स क्या आयरन सल्फेट से कॉपर सल्फेट बनाना? नहीं, क्योंकि मैं आयरन सल्फेट में कॉपर डालूँ कुछ नहीं होगा। तो इट इज़ अ वन डायरेक्शनल रिएक्शन, रिवर्सिबल नहीं। रिवर्सिबल होता तो ये कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है, तो ऐसा नहीं होता, एक डायरेक्शन हो गया। यस, तो ये एक केमिकल चेंज है, और केमिकल चेंज में भी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस कर, ठीक है? एनीथिंग एल्स? कंक्लूड करें इसे? आप लोगों को करना होगा फिर, और द वे आई एक्सप्लेन इट टू यू, यू हैव टू एक्सप्लेन इट टू मी नाउ, ठीक है? एंड व्हेन आई आस्क यू द क्वेश्चन, बिकॉज यू आर आस्किंग द क्वेश्चन, आई एम आंसरिंग इट, तो व्हेन आई आस्क यू द क्वेश्चन यू हैव टू आंसर इट, ठीक है? Okay. So with this we conclude this our experiment.